Okay, ORM 1. So in ORM, we first of all we have the very basic things: type of bond fissions, homolytic, heterolytic. Homolytic obviously is free radical mechanism, and then heterolytic is anionic or ionic. And the favorable conditions for the homolytic is helper. That's the trick to remember: heat, electricity, light, peroxide. Also, it is more favorable when the dipole moment of the bond is zero or almost zero, and it takes place in the gaseous phases usually. We will see that reaction also now. Okay, for heterolytic, the in presence of polar solvent, it is better because in polar solvents the ions are more stabilized. Okay, type of solvents: non-polar solvents, mu equals 0, CCl4, CS2, benzene, mesitylene, toluene, hexane, N-heptane, cyclohexane. Polar solvents: polar protic solvents, water, ethanol, methanol, propanol, secondary propanol, amine, HF, CSCOH, so on. And polar aprotic solvent, this is very very important: acetone, we have to remember the structures: acetone, DMSO, dimethyl sulfonyl oxide, something, dimethyl formamide, dimethyl acetamide. And then we have HMPA, hexamethyl phosphamide. This structure is very important. Okay, now the important point here is that the polar protic solvent solvates both the cation and anion. The polar aprotic solvent does not solvate the anion, that is a negative charge. Polar aprotic को negative charge से पता नहीं कोई problem है. Crown ethers, simple, they look like something like this. Okay, they trap these oxygen are trapping some cation, they can trap that like crabs. Okay, and this is the reason for why anion is not solvated by polar aprotic solvents. This is, I don't think, a very good reason. Now, type of attacking reagents: nucleophile, electrophile. What is the difference between transition state and intermediate? Transition state is not isolatable. Intermediate is isolatable. Examples of intermediate are carbocation, carbon anion, free radical, nitrene, benzene. Okay, and carbene, and what else? Benzene. That's all. Nucleophile, you know what it is. Electrophile, you know what it is. Examples of nucleophile, once check it. I don't think it's required to check. Electrophiles, important, this NH4 plus, H3O plus, the hydronium ion are not electrophiles. Don't see that positive charge. They have no vacant orbital, so they cannot accept more electrons, then hence they are not electrophiles. Ambidended nucleophile is basically a nucleophile which can donate in two different ways: Cn minus, carbon donor, nitrogen donor, NO2, HSO3, and this thing, whatever this is. Yeah, so type of electrophile is important: positive charge, neutral electrophiles, B trihaloborane something, and borane, AlCl3, carbene, nitrene, d orbital containing compounds which can accept the electrons in the d orbital: SO2, SO3, PCl3, PCl5. This PCl5 is both an electrophile and a nucleophile. Important. And this thing, whatever. But this is important. CCl4 is an electrophile. Sometimes it can be an electrophile. Even CO2, because these carbons are electron deficient. Okay, nucleophilicity. The rules for comparing are very 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 important. Never forget them. Simple. Rule 1: negative charge species are stronger nucleophiles. Obvious. OH minus greater, negative charge is more. Simple. When donor atoms are the same, then the nucleophilicity and basicity order will be the same. When the donor atom is the same. Important. Examples, this, and yeah, the more stabilized the negative, and yeah, the basicity rules also follow here.
The more stabilized the negative, the less basicity, hence the less nucleophilicity for the same donor atom. If we are comparing groups with the same donor atom, quinoclidine, the structure of quinoclidine, this thing very important, exceptional thing, I guess, amine inversion. And then the exceptions of these things are only when bulkicity comes into place. Nucleophilicity is a kinetic property. न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी का डिफरेंस सिंपल है, डिफरेंस बस इतना है कि एक सेकेंड, हाँ, तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसका काम इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है और कहीं पे पूरी तरीके से डोनेट करना है ना, मेरे को दिख नहीं रहा है, हाँ, न्यूक्लियोफाइल का पूरा ये काम है। वेराज अ बेस, उसका काम इतना है कि जो भी चीज़ है, जो भी सबस्ट्रेट है, उसमें लगा हुआ जो भी हाइड्रोजन एटम है, बस उसको ही और शी हैज़ टू अट्रैक्ट इट, द बेस हैज़ टू अट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम द सबस्ट्रेट एंड द न्यूक्लियोफाइल हैज़ टू गो टू द सबस्ट्रेट समहाउ एंड देन अटैक एंड देन डोनेट ऑल दैट। सो अगर बल्किसिटी यहाँ पे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये थोड़ा कम हो जाएगा, वेराज बेस में बल्किसिटी मैटर नहीं करता। तो यही सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे। एक बार देख ले हाइड्रोजीन में क्या होता है कि ये जो लोन पेयर्स है वो रिपल्सन की वजह से ऐसे बाहर की तरफ हो जाता है, बाहर की तरफ, तो वो ज़्यादा अच्छा डोनेटर बन जाता है, ज़्यादा अच्छा काइनेटिकली बेटर न्यूक्लियोफाइल। बेस इज ऑब्वियसली दिस अमोनिया इज बेटर, हाइड्रोजीन इज बैड बेस compared to ammonia, but hydrazine is a better nucleophile. Same with peroxide and this compound. Okay, so the rule 3, when donor atoms are related to the same period, हाँ ये बेसिकली रट ले, जैसे सेम पीरियड का है, रटने की जरूरत नहीं है, electronegativity factor basically. So the more electronegative element is more stable with the negative charge. Carbon is unstable with the negative charge, hence it is a better nucleophile. It is wanting to donate more. Now this is very important to memorize. When we go from top to bottom in the periodic table, basicity decreases, nucleophilicity decreases, except in polar protic solvent it increases. Simple, remember, basicity decreases as we go from top to bottom. Nucleophilicity also decreases, but only in the polar aprotic solvent. In the polar protic solvent it is an exception that it increases. This famous example. And then yeah, the same thing I guess. In polar protic solvent the nucleophilicity decreases because the water molecule solvates और घेर लेता है basically Cl minus को. Leaving group ability, electrofugality, nucleofugality, I guess जब जो लीविंग ग्रुप होता है अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है, लीविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करते हुए आए तो वो इलेक्ट्रोफ्यूगैलिटी हो जाता है, और अगर लेके आए जैसे हैलोजेंस हो जाए वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके आ जाते हैं तो वो न्यूक्लियोफ्यूगल हो जाता है, ऐसा ही कुछ है। और तो एसिड बेस रिएक्शन ये तो एकदम बकवास चीज़ है। एसिड बेस रिएक्शंस में बस ये ध्यान में रखना होता है जो एसिड प्रोडक्ट साइड में है वो स्ट्रॉन्ग ना हो कंपेयर टू द एसिड है। जैसे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पे H2SO3 बन गया। अगेन इट इज़ कॉमन नॉलेज कि H2SO3 इज़ अ बेटर एसिड देन एनी कार्बोक्सिलिक, so this reaction will not take place, otherwise it is pretty simple. And the same thing, Grignard reagent के acid base reactions basically अगर कहीं पे एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाता है तो ग्रिग्नार्ड वहाँ से सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन
को वो ले लेगा। अगर कोई बड़ा सा ग्रुप है उसे उसको ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करा दिया हमने, तो फिर बेसिकली सबसे पहले जो रिएक्शन करेगा वो सबसे फास्ट रिएक्शन होगा, वो एसिड बेस रिएक्शन होगा, और वो होगा एसिडिक हाइड्रोजन के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, उसका बॉन्ड 37% आयनिक होता है और 63% कोवलेंट होता है। हाँ, तो ऐसे MgXS में और ड्राई ईथर में डाल दे तो RMgX बन गया NC2। RI का रिएक्टिविटी ज़्यादा है, RF ऑलमोस्ट नो रिएक्शन देता है, RI ज़्यादा है बिकॉज द बॉन्ड ब्रेकिंग इज मोर ईजी। दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट वी यूज ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का स्ट्रक्चर एक बार लिखने दो मेरे को। ड्राई ईथर का स्ट्रक्चर ये है, डाईइथाइल ईथर। तो डाईइथाइल ईथर की जगह पे हम ये सब चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि RMgX ये वाला रिएक्शन कर देगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुखी आत्मा है, बहुत ज़्यादा रिंग स्ट्रेन है उसमें। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर्स RMgI ग्रेटर, RMgBr ग्रेटर, RMgCl ग्रेटर, वेरी 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 ग्रेटर देन RMgF, बिकॉज RMgF इज सम वाई नहीं रिएक्ट नहीं कर रहा है वो। और फिर ये बेसिकली जो R माइनस है वो जितना अच्छा स्टेबल है उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। एसिडिक हाइड्रोजन के साथ सबसे पहले रिएक्शन, फिर एल्डिहाइड के साथ, फिर कीटोन के साथ, फिर एसिड क्लोराइड, फिर एनहाइड्राइड, एंड देन व्हाट इज दिस, एस्टर ईथर। अब छोड़, ठीक है, तो यप दिस रिएक्शन सिंपल फॉर्मेशन, सिंपल रिएक्शंस है। और ये याद रखने का चीज़ है दोनों में से कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन है, विच इज़ मोर एसिडिक। तो ये ज़्यादा एसिडिक होता है, इसका हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होता है। और जैसे यहाँ पे देख सकते हो एक्सेप्शन है, Mg ईथर के साथ करोगे तो ये इंट्रामोलिकुलर टाइप का रिएक्शन हो जाएगा। बेसिकली Br इधर जाएगा, नहीं Br इधर नहीं जाएगा, सॉरी, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड बनेगा, फिर इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस IMAB रिएक्शन हो जाएगा और ऐसा कुछ कंपाउंड बन जाएगा। बेसिकली वो इधर आ जाएगा ऑक्सीजन के पास, पता नहीं क्यों। और ठीक है ये सब। फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आ जाते हैं हमारे पास। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनाइल ग्रुप देता है, और इसके रिएजेंट्स देखेंगे कौन से हैं। कार्बोनाइल देता है, बेसिकली क्या होता है, दो टाइप का है इसका मैकेनिज्म। एसिडिक मीडियम में H+ आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देगा, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऐसे कार्बोकेटायन बनेगा, और फिर कार्बोकेटायन प्लेनर होने के कारण जो कंपाउंड है, जो भी है, क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोफाइल है, वो ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है। तो वो ऊपर से आएगा या नीचे से आएगा, उसकी वजह से दो कंपाउंड बन जाते हैं, दो स्टीरियो आइसोमर्स। और हाँ, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट ऑफ, ये हमने काइनेटिक्स में पढ़ा है कि जो RDS का रेट होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन होगा, और RDS यहाँ पे होता है न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। ठीक, और हाँ बेसिक मीडियम में भी होता है सिंपल, न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर देता है और बस उल्टा होता है बस। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है, रेट ऑफ reaction is directly proportional to the nucleophilicity of nucleophile, which is intuitive, and then electrophilicity of the carbonyl group। ये important है, इसका मतलब ये है कि जो भी कार्बोकेटायन बनेगा वो ज़्यादा अनस्टेबल होना चाहिए। मतलब जो नेगेटिव ग्रुप है, जो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है उस चार्ज का, वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसका इट शुड बी लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है
इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करोगे तो उसका रिएक्टिविटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन दोगे तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन लेना है, उसे ज़्यादा पॉजिटिव बनाना है, ज़्यादा करीब बनाना है उसको। और ये एक एक्सेप्शन टाइप का है कि टर्शरी ब्यूटाइल और हाइड्रोजन लगा है तो टर्शरी ब्यूटाइल नहीं है, अब टर्शरी ब्यूटाइल है ये, तो इसका रेट ज़्यादा हो जाता है, इट इज़ मोर वॉट एवर समथिंग। एक्सेप्शन टाइप का है, ये भी थोड़ा एक्सेप्शन टाइप का ही है। क्लोरल का रेट ज़्यादा होता है क्योंकि ये वो बना लेता है ना, क्लोरल हाइड्रेट, द मोस्ट ब्यूटिफुल कंपाउंड इन विच क्लोरीन shows H bonding with oxygen somehow. And then देखो यहाँ पे वो दिख रहा है अगर कार्बन पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, यहाँ पे कार्बन का जो पॉजिटिव का जो मैग्नीट्यूड है वो कम है क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जा रहा है और उसके वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। एंड द सेम गोज फॉर साइक्लिक कीटोन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रिंग स्ट्रेन ज़्यादा होता है, इट इज़ मोर reactive something, and the same thing goes here, more ring strain, more reactive, glyoxal very important compound, नाम याद करो, ठीक है। और ये देख लो यार एक बार, रट लो ये चीज़, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर, फाइन। एंड देन सम मोर एग्जांपल्स, ऑल ऑफ देम आर सिंपल। और ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री की मैं बात कर रहा था, जब जो प्लेनर कार्बोकेटाइन बनेगा, ये वाला कौन सा, ये वाला, ये प्लेनर कंपाउंड है, कार्बोकेटाइन भी प्लेनर बनेगा तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो ये सारे रिएजेंट्स दे सकते हैं, वाटर, अल्कोहल, साइनाइड, HSO3 माइनस, और ये कंपाउंड पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, ग्रेगनार्ड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सब दे सकता है। तो एडिशन ऑफ वाटर में अल्कोहल जुड़ जाएगा और सिंस हमें पता है ये क्या देता है, कार्बोनिल दे देता है वापस। ये रिएक्शन पीछे की तरफ ही जाएगी क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है, जेम डायोल, इट्स अ वेरी अनस्टेबल कंपाउंड बिकॉज ऑफ रिपल्शन वॉट एवर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर रिपल्शन बोल सकता है ऐसा। बट दीज रिएक्शंस गो मोर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाई रिंग स्ट्रेन है, पहली बात होना चाहिए एंगल, द एंगल शुड बी 120 बट इट इज 60, so that is 30 of Bayer's ring strain, 30 units of Bayer strain, and then that gives this, ये कंपाउंड बन जाता है, ठीक है, बन जाता है ये कंपाउंड क्योंकि बन जाता है। और ये ऑब्वियसली क्लोरल हाइड्रेट, एच बॉन्डिंग होता है, इंपॉर्टेंट, क्लोरल हाइड्रेट नाम याद करना है। एडजेसेंट ट्राइओन भी हो जाता है क्योंकि एच बॉन्डिंग है, ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। और ये भी है इम्पोर्टेंट टाइप का ही कुछ शायद से, ये सिंपल है, कम ऑन। फिर एडिशन ऑफ अल्कोहल और हेमी एसिटाल हेमिकीटाल यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, हेमी एसिटाल, ठीक है। ये कंपाउंड होता है जिसमें एक OH ग्रुप है और एक OR ग्रुप है, ये समहाउ स्टेबल होता है, मतलब एग्जिस्ट कर तो जाता है। हेमी एसिटाल हेमिकीटाल, व्हेन द रिएक्टेंट इज एल्डिहाइड हियर वी गेट हेमी एसिटाल, जब मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, और हेमिकीटाल व्हेन यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। जब एक और बार वो रिएक्शन हो जाता है, जब OR ग्रुप आ जाता है, तो सेम एसिटाल जब एल्डिहाइड है, कीटाल जब ये कीटोन है, और ये क्या लिखा अच्छा हाँ, ड्राई एसिड लेते हैं हम यहाँ पे, डाइल्यूट नहीं लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड ड्राई लेंगे क्योंकि अगर मॉइस्चर रहा तो ये वापस हाइड्रोलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये भी काफ़ी अनस्टेबल होता है, क्योंकि ये अनस्टेबल था हमारा जेम डायोल, तो जेम डायल अनस्टेबल होता है तो ये भी अनस्टेबल होना चाहिए, बट ठीक है, ड्राई में हो रहा है तो ठीक है।
और इसकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। एक सेकंड, इट्स हाइड्रोलिसिस इज पॉसिबल इन एसिडिक मीडियम। एसिटाल बहुत खांसी आ रही है। एसिटाल एंड कीटाल की जो हाइड्रोलिसिस है वो पॉसिबल है सिर्फ एसिडिक में, वेराज हेमी एसिटाल हेमी कीटाल की हाइड्रोलिसिस पॉसिबल दोनों में है। तो ये भी एक फैक्ट है, पता नहीं कहाँ पे यूज़ होगा पर याद कर लो। हेमी एसिटाल और हेमी कीटाल की हाइड्रोलिसिस हो सकती है एसिडिक एंड बेसिक मीडियम दोनों में। एसिटाल एंड कीटाल की हाइड्रोलिसिस हो सकती है सिर्फ एसिडिक मीडियम में। और ये मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म इज प्रिटी मच द सेम। और ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है साइक्लिक कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनने का। जब हम एक्सेस मेथनॉल डाल देते हैं ड्राई एसिड, जैसे अभी देखा था, तो ये कंपाउंड दो आएंगे। देखो जैसे एक CH3OH है, इमेजिन करना, और उसको ऐसे आ गया, हाइड्रोजन इधर है और CH3 इधर है, तो हाइड्रोजन निकल जाएगा एंड ये बन जाएगा, दो ऑक्सीजन आएंगे और वो जुप करके इसको अटैक कर देंगे और ऐसा कुछ आएगा शायद से, वैसा ही होना तो चाहिए। और द सेम विथ मिथाइल थायोल एंड सेम विथ ग्लाइऑक्सो, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलता है, पता नहीं, छोड़ो। द सेम विथ दिस थिंग ऑल्सो। रूल ऑफ थंब क्या है ये सब, हाँ, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर गोइंग टू बी मोर फास्टर, क्योंकि अंदर ही अंदर ज़्यादा आसानी से होगा। सॉरी। फिर एडिशन ऑफ साइनाइड, सिंपली CN ऐड हो गया, कार्बन यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप है, हाँ, और इसको बेस में ले लेते हैं ताकि CN- बन जाए बेस में, या फिर एसिड ही ले लेंगे, सॉरी सॉल्ट ही ले लेंगे। These are the reagents used for the HCN nucleophilic addition reaction. For addition of NaHCO3 sodium bisulfite, the same thing happens and we can form original aldehyde ketone product of this reaction. क्या लिखा हुआ है ये सब, we can form original aldehyde ketone product of reaction। अच्छा ठीक है, मतलब हमने ये बनाया और उसको अगर हम वापस से ये बनेगा, पहले तो ये यहाँ पे जाएगा, फिर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगा, और फिर अगर हम इसको वापस से डाइल्यूट एसिड के साथ या डाइल्यूट बेस के साथ करेंगे कुछ, तो ये वापस से हमारा वही सेम कंपाउंड बन जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। सॉरी, खांसी है मेरे को बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे टाइप की खांसी है। मैकेनिज्म, सल्फर डोनेटिंग ग्रुप है यहाँ पे और ये चीज़ें बन जाती है। ठीक है, फोकस। अच्छा, इसको अल्कालाइड्स बोलते हैं, ये सीड ट्रिपल बॉन्ड C को अल्कालाइड बोलता है अपेरेंटली। तो ये सिमिलर रिएक्शन देगा, RMgX also the same reaction, the R goes here and then again on hydrolysis the thing becomes alcohol. With lithium aluminum hydride, the important thing to note here is that H- is the nucleophile, बाकी सब तो कर ही सकते हैं आराम से। और ये भी बनता है AlOH taken 4 times negative। ये सब क्या है, प्रिपरेशन ऑफ LiAlH4, लिथियम हाइड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड को मिला दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LaH बन गया। और वैसे ही हमने सोडियम हाइड्राइड प्लस डाइबोरेन गिव सोडियम बोरोहाइड्राइड। These things are fairly simple and then RMgX के साथ किया हमने, एग्जाम्पल थे ये सब तो, ठीक है, एग्जाम्पल सॉल्व करना इम्पोर्टेंट है। और हाँ, जिस कार्बन पे रिएक्शन नहीं हो रहा उसका रिटेंशन होगा, ठीक है, तो उसका रिटेंशन होगा। और हाँ बस, और क्या, सिंपल चीज़ें हैं। 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं,
अगर दूसरा है तो अगर दूसरा क्या बोलते हैं इसको, कायरल सेंटर है तो डायस्टीरियमर्स बन जाएंगे, नहीं तो एनांशियोमर्स बन सकते हैं। और नंबर ऑफ फ्रैक्शन वो सब तो निकालना आता है ही। अब कार्बोनिल ग्रिग्नार्ड को हम अगर CO2 SO2 SO3 के साथ हम रिएक्शन करा देते हैं तो हमें क्या क्या बनता है ये देख लेंगे। RmGX प्लस ड्राई आइस विच इज जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड विल गिव अस आफ्टर ऑल ऑफ दिस मैकेनिज्म, मतलब कार्बन आएगा और R माइनस के साथ, या फिर ऐसे बोलो R माइनस बनेगा और वो कार्बन के पास जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल गोज टू इलेक्ट्रोफाइल, या जो हमने अभी देखा था पहले थोड़ी देर पहले। और ये हमारे पास बन जाएगा, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ, इट इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा वो। RLI गिलमान रिएजेंट बनाने में यूज़ होता है, R2CuLi गिलमान रिएजेंट होता है, R2CuLi। सो RLI प्लस ड्राई आइस इज गोइंग टू गिव यू कीटोन। जल्दी से देख लेंगे, कार्बन R माइनस जाएगा, लिथियम बना, एक और आएगा वेरी इंटरेस्टिंग, एक और आएगा और हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा जेम डायोल। और ये जो RLI का R है वो 2 बार लग जाएगा और कीटोन बन जाएगा। SO2 के साथ ये SO2 के साथ सल्फिनिक एसिड बन जाएगा, RmGX, सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, RSO3H। ठीक है, SO2 के साथ सल्फिनिक एसिड, एक ऑक्सीजन कम है यहाँ पे, एक ऑक्सीजन बनाने दो मेरे को, ये ठीक है। तो ये सब हो गया, सिंपल था ये सब, तो इम्पोर्टेंट था। ORM1 है, मेरा पेन भाग गया, ये पेन का पेन मिल गया, चलो। Let's go to the reaction with cyanide. Again, it is slightly more important. The R goes to the carbon, which is fairly simple, and then we get amine. Fine, because of the hydrolysis. Amine, it cannot be isolated apparently, and then we lose this nitrogen thing to get ketone. If we take RmGX in excess, then should this ketone not react again to form alcohol? No, because if we take it, it will react with the water itself. Okay, what does it form? Sorry, you have to ask whatever. ठीक है, इसके साथ भी रिएक्शन करा देता है ये कीटोन टाइप का चीज़, जिसमें कार्बन की जगह सल्फर है, ये बन जाएगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे ये बन जाएगा ऑब्वियसली विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, H माइनस आएगा, कार्बन पे जाएगा और अल्कोहल, ये सब बन जाएगा। मैकेनिज्म वही है, बस जैसे मैंने बोला, H माइनस आएगा, बन जाएगा। और ये सब कुछ थोड़े, हाँ ये इम्पोर्टेंट हो सकता है शायद, रिएक्शन ऑफ साइनाइड ग्रिग्नार्ड के साथ। अभी देखा हमने कीटोन बना रहा है विथ अमोनिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ये बनाएगा 1 डिग्री अमाइन, जो हम पढ़ेंगे रिडक्शन वाले चैप्टर में। हाइड्रोलाइसिस करा बेसिक मीडियम में, वो उसने हमें दिया इमीन, जो टॉटमराइज होके अमाइड बन जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट अमाइड होगा इन दी बेसिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड। In the acidic medium hydrolysis at room temperature, you get cyanide again. But if you heat it in acidic medium or basic medium, देखो बेसिक मीडियम में अमाइड बनेगा, किसका? साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस बेसिक मीडियम में अमाइड देता है, साइनाइड का इनकम्प्लीट रूम टेम्परेचर पे एसिडिक मीडियम पे हाइड्रोलाइसिस भी अमाइड देता है, और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस थोड़ा बहुत हीट करने पे दोनों मीडियम्स में कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है, जो कि हमारा अमाइन IMINE देता ही है। अब SN2TH उसको बोलते हैं अराइल SN2 रिएक्शन। उसमें कुछ नहीं होता है, बस जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कार्बन पे जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, और जो लीविंग ग्रुप है वो निकल जाएगा।
फेयरली सिंपल, दैट इज बेसिकली द मैकेनिज्म। और यहाँ पे 2 पीक्स आएंगे, एक्सोथर्मिक, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, एक्सोथर्मिक ही है ना, एनर्जी रिलीज हो रहा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगेन कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री वही रहेगी, सेम एज इलेक्ट्रोफिलिक, सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एंड दीज कंपाउंड्स गिव दिस रिएक्शन। आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्टिविटी ऑफ SN2TH, न्यूक्लियोफिलिसिटी, मैग्नेटिक ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेम आएगा, बस एक एक्स्ट्रा फैक्टर जो सेम अभी हमने सारे फैक्टर्स पढ़े वो सेम यहाँ पे भी अप्लाई होंगे, बस एक एक्स्ट्रा आएगा, वो है द स्टेबिलिटी ऑफ लीविंग ग्रुप। और सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल होता है ये वाला, RCl एनहाइड्राइड एस्टर, हाँ एस्टर, इसको एस्टर बोलते हैं, एस्टर 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 एस्टर। ईथर होता है ROR, ईथर 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 ईथर, ठीक है। तो ये क्लोरीन ज़्यादा अच्छा स्टेबलाइज हो जाता है, इसका बताता हूँ क्यों। फिर ये ज़्यादा स्टेबलाइज होता है, मतलब जो निकल के जो Cl- है वो ज़्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप है। O- C double bond R is slightly less but also good, and then O- R, and then my NH2- is a bad leaving group. I will explain why Cl- is a good thing. This is a very important level logic, क्योंकि देखो HCl एक स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब जब वो रिएक्शन करेगा, मतलब जो एसिड करते हैं डिसोशिएट हो जाता है, H+Cl- माइनस। तो ये क्यों होता है, क्योंकि Cl- जो प्रोडक्ट है वो तो अगर स्टेबल होंगे तभी तो वो बनेंगे, अगर स्टेबल नहीं है तो वो नहीं बनेंगे ना, तो Cl- स्टेबल है। उस हिसाब से हम देख सकते हैं NH2- जो NH3 है, NH3 इज अ बेस, इट बिकम्स दिस वन, ये बन जाता है वो, ये चीज़ NH4+। NH2- इसलिए नहीं बनता क्योंकि अमोनिया बेस है, तो ये एक अच्छा लॉजिक है मेरे हिसाब से। द सेम लॉजिक कैन बी अप्लाइड हियर। I- इज अ मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ another important logic. I- is more stable because of large size, that's why the charge distribution is low, hence the potential energy of that thing is low, hence more stable. फिजिक्स तो सबको समझ में आती है, फिजिक्स अच्छा है, ठीक है। और रिएक्शन विद SN2TH, सिंपली जो ये सारे अभी हमने देखे थे उन पे हम लोग कुछ ना कुछ न्यूक्लियोफाइल ऐड करते ही जाएंगे। ये डायग्राम सिंपल है, एक बार देख लो। इसमें एक इम्पॉर्टेंट लॉजिक यहाँ पे यूज़ होता है कि अगर हम लोग अल्कोहल ले रहे हैं, उसको हम लोग RO- को बनाना पड़ेगा ना, RO- बनाना पड़ेगा उसको, तो वो हम करेंगे पिरिडिन, दैट इज़ अ बेस के हेल्प से, ताकि हमारे पास RO- बन जाए। सो इट्स अ बेटर, फास्टर, मोर इकोनॉमिकल रिएक्शन आई सपोज। तो इसमें ये ऐड कर देखो, इम्पॉर्टेंट ये है कि अमाइड से एसिड क्लोराइड नहीं बना सकते, एसिड क्लोराइड से अमाइड बना सकते यूजिंग दीज रिएजेंट्स। जस्ट सी इट फॉर 2-3 सेकेंड्स, पॉज कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट है ये, इम्पॉर्टेंट। ओके, अब फिर थोड़े एग्जांपल्स। इंट्रामोलिकुलर, हमेशा भूलना नहीं है कि इंट्रामोलिकुलर नाम का एक चीज़ होता है, और अगर कोई भी पॉसिबिलिटी देखे तो पहले इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करना है, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ग्रेटर देन नॉर्मल रिएक्शन। हैलोफॉर्म प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट अपेरेंटली। हैलोफॉर्म होता है CHX3, CCl3, HCl3, क्लोरोफॉर्म है ना, किडनैपिंग में काम आता है। तो OH- जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, फिर ये पता नहीं क्या होगा, अच्छा ये इधर जाएगा तो CH3 निकल जाएगा, और हमारे पास ये बन जाएगा, और CH3 बनेगा, जो कि गुड न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि
सॉरी नॉट गुड न्यूक्लियोफाइल, गुड बेस और स्टेबल है थोड़ा थोड़ा। और फिर वो एसिड बेस रिएक्शन होगा, पानी वानी डाला है तो H+ आएगा और CHCl3 बन जाएगा। ये देख लेते हैं। वाटर डालेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, COH डालोगे तो एनहाइड्रेट बन जाएगा, अल्कोहल डालोगे तो एस्टर बन जाएगा। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि इसका रिटेंशन होता है क्योंकि जो कार्बन कायरल है उस पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ है तो उसको तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अमोनिया डालोगे एसिड क्लोराइड के साथ है सारे रिएक्शंस, अमोनिया डालोगे अमाइड बन जाएगा। सेकेंडरी बनाओगे, क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी बोलेंगे ना। प्राइमरी डालोगे तो प्राइमरी अमाइड डालोगे तो प्राइमरी अमाइड बनेगा। सेकेंडरी अमाइड बनाओगे तो सेकेंडरी अमाइड। और टर्शरी में कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनना पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर किसी तरीके से इसका R1 निकाल दिए पता नहीं कैसे तो हो सकता है। अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज न्यूक्लियोफाइल, इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। एनिलीन क्या बोलते हैं इसको, एनिलीन नहीं बोलते इसको, पिरिडिन बोलते हैं इसको। यस, पिरिडिन में न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज नहीं बन पाएगा इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। हाइड्रोजीन में रिएक्शन हो जाता है एक्सेप्शनली, ग्रेट। Cn- नेगेटिव चार्ज है, अजाइड नेगेटिव चार्ज है, डायरेक्टली बन जाएगा और RMgX बन जाएगा। तो RMgX से बन जाएगा कीटोन या जो भी है। हाँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ये बन जाएगा। सिंपल चीज़ें है एकदम। और हाँ, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है क्या, नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है। दोनों लिथियम एल्यूमिनियम और सोडियम बोरोहाइड्राइड में दोनों सेम बनेगा, अल्कोहल बन जाएगा, है ना, सिंपल। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव, समथिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर, एसिड क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में फेवरेबल नहीं होता, ठीक है। बना तो देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एनहाइड्राइड का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस फेवरेबल होता है। तो बेसिकली आउट ऑफ दीज 3-4 acid chloride, anhydride, ester and amide, only the not favorable reaction in acidic medium is for acid chloride. This is the, what is this, hydrolysis in acidic medium। और हर एक में कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। बेसिकली ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे OH लगेगा और यहाँ पे Cl को H मिल जाएगा। यहाँ पे भी सेम होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। और वो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद रिएक्शन हो जाएंगे। वेराज इन बेसिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस फेवरेबल होता है एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड का। एनहाइड्राइड का दोनों में फेवरेबल होता है, एसिड क्लोराइड का सिर्फ बेसिक में फेवरेबल होता है, और एस्टर का एसिडिक में फेवरेबल होता है, इतना रैंडम, और अमाइड का एसिड में फेवरेबल होता है। बाकी हर जगह बनता तो सेम प्रोडक्ट है एक्सेप्ट दैट इन बेसिक मीडियम द बेस एक्सट्रैक्ट्स द प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन बन जाता है सिंपली। और यहाँ पे ये निकल जाएगा तो ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेकिंग कैसे होगी बॉन्ड की, CO बॉन्ड होगा या RO बॉन्ड होगा। अगर R' पे कार्बोकेटायन स्टेबल है, दैट इज R' इज बेंजाइलिक और इवन एलाइलिक, और कोई और अगर अच्छा खासा स्टेबलाइजेशन अवेलेबल है तो वो हो जाएगा, क्या बोल देंगे इसको, हाँ सॉरी ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सिंपल। और फिर मैकेनिज्म, ठीक है, ये देख लेते हैं। सॉरी, द हाइड्रोलिसिस ऑफ esters in acidic medium is reversible but in basic medium is irreversible. Hydrolysis of ester in acidic is reversible, in basic is irreversible. Acidic में reversible क्या,
हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, एसिडिक में रिवर्सिबल, बेसिक में इरिवर्सिबल। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, सॉरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। एसिडिक मीडियम क्या बोलते हैं मुझे कुछ आइडिया नहीं है। थैलेमाइड का स्ट्रक्चर, थैलिक एसिड का स्ट्रक्चर, ये कंसेप्चुअल है। हाँ ये वही चीज़ है, वो ये वाला ये चीज़। और फिर ये सब ठीक है। SN2TH रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सेम है, न्यूक्लियोफाइल जाएगा और बनाएगा। ये क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि Cl माइनस ज़्यादा बेटर, और सॉरी OH माइनस इज मोर स्टेबल देन Cn माइनस। प्रोडक्ट अनस्टेबल क्यों बनेगा? नहीं बनेगा। PCl5, PCl3, अभी बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। SOCl2 में Cl लग जाएगा, P2O5 में एनहाइड्राइड बन जाएगा। इट इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सो इट बिकम एनहाइड्राइड, हाइड्राइड रिमूविंग थिंग। और हाँ P2O5 कोई कंपाउंड होता है नहीं, P4O10 होता है, उसको हम बस ऐसे लिख देते हैं मज़े के लिए। PCl5 SO2Cl2 थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड, SO2Cl2 is called as sulfuryl, I am very slow, sulfuryl chloride। SO2Cl2 is called as sulfuryl chloride, fine, very fine। sulfuryl chloride, thionyl chloride। SO2Cl2 यूज़ नहीं होगा यहाँ पर, क्या यूज़ होगा पता, SO2Cl2, SOCl2, अरे यार क्या होगा। PCl5 में ये बन जाता है, ये बन जाता है, ये बन जाता है। अभी देखते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा शायद, अभी आएगा, पता नहीं कब आएगा। और फिर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन अभी पढ़ने वाला है। अमाइड में ये सब बन जाता है, अमाइड बन जाता है, ये नहीं बनता है। अगेन द रीजन आर ऑब्वियस, क्या 3 डिग्री अमाइन से नहीं बनता है, क्यों? क्योंकि N माइनस नहीं बन पाएगा, ठीक है। टर्पथैलिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, gives us this compound, fairly simple। Phthalic acid gives us this compound with P2O5, और जस्ट हीटिंग में भी ये दे देता है हमें। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोई तो एनहाइड्राइड है ये, थैलिक एनहाइड्राइड बोल सकते हैं इसको, और क्या, थैलिक एनहाइड्राइड, हाँ थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक अमाइड भी बन जाता है अगर 2NH3 डालेंगे तो। और थैलिक अमाइड को हीट करने से और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करने से ये बन जाएगा, हीट करने से ये NH2 होगा यहाँ पे, NH2, लेट मी राइट दैट 2 हियर। NH2 में ये निकल जाएगा और ये बन जाएगा, इसको पता नहीं क्या बोलेंगे। मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन इज इम्पोर्टेंट, जस्ट गो थ्रू इट, मेरे को अभी नहीं देखना इसको। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है। ऑक्सीजन जाएगा सल्फर पे जा रहा है, C डबल बॉन्ड O वाला O सल्फर पे जा रहा है, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ हो रहा है, जो भी इम्पोर्टेंट तो आई डोंट थिंक सो है। रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर PCl5 कभी मोटिवेटेड है तो देख लेना, याद कर लेना, मोटिवेशन जब मिल जाए तब, अभी तो नहीं है। इसको याद करने के लिए तो एटलीस्ट। फिर PCl3 के साथ ये हो रहा है, ये सब कुछ पॉज करके देख लें। और फिर ये भी हो रहा है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे लिखना है कंपाउंड्स को ऐसे, और फिर ये निकाल सकते हैं हम, या फिर हम ये निकालेंगे डिपेंडिंग ऑन दिस R ग्रुप। अगर R ग्रुप ज़्यादा स्टेबल है तो हम ये बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, अगर R ग्रुप उतना स्टेबल नहीं है तो हम ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे और इंस्टेड ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, और फिर हमारे पास ये और ये मिक्स हो जाएंगे, फिर बॉन्ड बना लेंगे और एनहाइड्राइड नहीं
एस्टर बनेगा, एस्टर बनेगा जब आर स्टेबल हो, मतलब आर जब 3 डिग्री एलाइलिक, अल्काइलिक क्यों लिखा हुआ है, 3 डिग्री हो, एलाइलिक हो, ठीक है, मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो, बेंजाइलिक हो, जो भी है, इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन एज एस्टर विल गेट हाइड्रोलाइज्ड बाय H2O, इसलिए हम कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं ताकि वाटर ना डालते हैं, ताकि जो एस्टर है वो हाइड्रोलाइज ना हो जाए। मैकेनिज्म, H+ आता है, प्रोटोनेट करता है, फिर बहुत कुछ होता है। क्या होता है, वाटर रिमूव हो जाता है कुछ ऐसा, बहुत बढ़िया। प्रोटोनेशन होता है, फिर अच्छा ये आता है, अल्कोहल आगे अटैक करता है, तब OH- कुछ निकलता है, SN2TH, OH- यहाँ पे निकलता है क्योंकि RO- थोड़ा कम स्टेबल है OH- के कंपेयर्ड में। कितना बाकी है, हो गया बस। R- इक्वल्स 3 डिग्री, हाँ सिंपल सिंपल। रिएक्टिविटी ऑफ दिस रिएक्शन increases when the R of acid is electron releasing group। क्या मतलब होगा इसका, मतलब जो एसिड है उसका R है, इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ताकि जो यहाँ पे बन रहा है शायद से, ताकि हाँ ताकि, अच्छा क्या, ठीक है जो भी है याद कर लो कि अल्कोहल, सॉरी, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसका जो R ग्रुप होगा उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, और अल्कोहल को इलेक्ट्रॉन ग्रुप लेना, नहीं क्या उल्टा बोल दिया मैंने, हाँ उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी, EWG। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा R ग्रुप ऑफ द एसिड तो अच्छा रहेगा, और अगर R ग्रुप ऑफ द अल्कोहल इलेक्ट्रॉन देगा तो अच्छा होगा। And the reactivity increases when the steric hindrance is decreased. Again, that is important AF. SN2TH of PCl5, PCl5 वाला रिएक्शन में एक ट्रिक हम लोग याद कर सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ये वाले बॉन्ड्स को हमें ब्रेक करना है और दोनों साइड Cl लगा देना है। देखो सारे रिएक्शन वैसे ही हो रहे हैं, और POCl3 बन जाएगा। अच्छा सॉरी मैं गलत बोल दिया, तो अच्छा ठीक है भूल जाओ उसको। हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना है, और ऑक्सीजन, जो भी ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, इनके दोनों साइड वाले बॉन्ड ब्रेक करना है, और जो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट वाले ग्रुप्स है उनको Cl जोड़ देना है, और जो ऑक्सीजन है वो POCl3 बना देगा। जैसे ये 18 वाला ऑक्सीजन था तो ये PO18Cl3 बना देगा, और यहाँ पे Cl जुड़ गया और यहाँ पे Cl जुड़ गया, वेरी सिंपल। सॉरी फॉर दैट, गलत बोल दिया था मैंने। अदर रिएक्शंस ऑफ PCl5, द सेम लॉजिक अप्लाइज हियर ऑल्सो। RCl बनेगा, HCl बनेगा और POCl3 बनेगा, RCl बनेगा, R-Cl बनेगा। यहाँ पे याद करना पड़ेगा, याद भी नहीं करना पड़ेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड तोड़ दिया और Cl लगा दिया, और ये POCl3 बन जाएगा, Cl3, POCl3, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा याद करना पड़ जाएगा क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट रिएक्शन है। अगेन इसको भी समझा जा सकता है, ऑक्सीजन का जो दोनों बॉन्ड ब्रेक करना है, और यहाँ पे 2 बॉन्ड थे तो 2 क्लोरीन लगा देना है, POCl3 बना देना है। 2 बॉन्ड थे तो 2 क्लोरीन लगा देना है, POCl3 बनाना है। 2 बॉन्ड थे तो 2 क्लोरीन नहीं लगाना है। यहाँ पे ये एक्सेप्शन आ गया हमारे फालतू से रूल का। आर अमाइड में PCl5 RCN बना देगा, पता नहीं कैसे, जो भी है याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अमाइड प्लस PCl5 गिव्स अस साइनाइड, ठीक है, P2O5 gives us cyanide, SOCl2 also gives us cyanide and other products,
एक और लॉजिक यहाँ पे यूज़ होता है कि SO2 और HCl गैसेज है, तो एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस है ये, तो ये स्टेबल रिएक्शन होता है। स्टेबल मतलब फास्ट रिएक्शन होता है ये सब, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं, उनके रिएक्शन है। बेसिक थियरी है कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड वो होता है जिसमें एटलीस्ट वन कार्बन मेटल बॉन्ड हो, ठीक है। कार्बन मेटल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनोमेटालिक। एंड अगर मेटल सोडियम या पोटेशियम है तो बहुत रिएक्टिव होगा, अगर मैग्नीशियम लिथियम है तो अच्छा रिएक्टिविटी होगा, और अगर कॉपर और कैडमियम है तो थोड़ा कम होगा। RMGX, Grignard reagent, R2CuLi, Gilman's reagent, very important to remember, ठीक है। तो ये बनेगा, RMGX आएगा और R घुस जाएगा, सिंपल हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। These are very unstable, very unstable। यहाँ पे क्लोरीन है, ये क्लोरीन, एसिड क्लोराइड विद एन H, anhydride with H on both side are very unstable, so they don't exist। अगेन बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ से होगा रिंग में बॉन्ड ब्रेकिंग कहाँ दिखा रहा हूँ, रिंग में बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ होगा, ठीक। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अल्कोहल बनेगा और ये बन जाएगा, प्लस दिस बनेगा। कैसे, एज यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ कंपाउंड दिख जाए तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड दोनों ब्रेक करना है, यहाँ पे वही बनाना है, SN2TH रिएक्शन करना है, ये कंपाउंड बन जाएगा सिंपल। इस कार्बन के साथ ये जो C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन है वो ये बना देगा, और ये करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स बन जाएंगे, और CH4 आ जाएगा एक एक्स्ट्रा, एज द रिमेनिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल रिएक्ट विद द एसिड मीडियम। हमने एसिड डाला था ना इसको अल्कोहल बनाने का, तो वो वहाँ से प्रोटॉन ले लेगा और RH बना देगा, और R यहाँ पे था मिथाइल CH3, ठीक है। फेयरली सिंपल, ये इंपॉर्टेंट है, CH4 बन जाएगा। अगर हम अदर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ले लें तो फिर भी सेम ही रिएक्शन होगा, R2CuLi या फिर R2 कैडमियम जो कि वीकर है, R2CD, the cadmium thing is weaker than the Grignard reagent and the RCl, okay। Also this no reaction with these things, ठीक है। कीटोन एल्डिहाइड एंड साइनाइड के साथ R2CuLi और R2CD रिएक्ट नहीं करते हैं, R2CD, R2CuLi, they do not react with aldehyde, ketone and cyanide। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ गिलमैन रिएजेंट वेरी इंपॉर्टेंट। ये देंगे हम लोग, RX लेंगे, Li लेंगे, ईथर डाल देंगे और RLi बन जाएगा। RLi को हम लोग लिथियम हैलाइड के साथ बनाएंगे, तो ये बन गया हमारे पास गिलमैन रिएजेंट। आयोडीन लेंगे, वैसे तो कॉपर आयोडाइड ले देंगे, है ना। तो लिथियम हैलाइड प्लस कॉपर आयोडाइड गिव्स अस गिलमैन रिएजेंट। और R2CD को हम अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हम मिक्स कर देंगे तो CdCl2 cadmium chloride when reacted with Grignard reagent gives us R2CD, ठीक है। विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑल्सो द सेम रिएक्शन, H माइनस जाएगा कार्बन पे, वो डबल बॉन्ड ऊपर चले जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, फिर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे और हाइड्रोजन आ जाएगा। क्या ऐसा होगा? ऐसा होना तो चाहिए, क्यों नहीं होगा? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोलाइसिस नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जाएगा क्योंकि क्या लिख रहा हूँ मैं, तो फ़ोन पकड़ा हुआ, आदत नहीं है, ठीक है। तो ये सब बन जाएगा मैकेनिज्म, रफ मैकेनिज्म। हमारे पास ये बनेगा, SN2TH रिएक्शन होगा, देख सकते हो,
और फिर ये बन जाएगा और एक और H माइनस आएगा, ठीक है, वो यहाँ पे लग जाएगा कार्बन पे और फिर हाइड्रोलाइसिस होगा। सॉरी गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर, छोड़ दो। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, बस ये लिख के छोड़ देंगे। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट, देख लो जल्दी से, इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आ सकता है। दैट विल बीट द कंपटीशन बिकॉज दे आर डिफिकल्ट क्वेश्चन जो मैकेनिज्म पे आएंगे होपफुली। और हमारा चैप्टर ख़त्म। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है लास्ट वाले का। बाय, सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़।